डीजल ने इस टाइप का साइकिल डिवाइस किया था, इसलिए इसे हम डीजल साइकिल इंजन्स भी कहते हैं। एक और पर्टिकुलर केस होता है जिसमें हम जो हीट सप्लाई करते हैं कुछ उसका कंबशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं और कुछ कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं। तो इस बेसिस पे हम इस इंजन को बोलते हैं डुअल साइकिल इंजन। सो हीट सप्लाइड एट पार्टली एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड पार्टली एट कांस्टेंट प्रेशर। सो दिस इंजन इज नोन एज डुअल साइकिल इंजन्स और डुअल साइकिल। इसको हम सेमी डीजल इंजन के नाम से भी जानते हैं। So another category which includes the classification based on engine speed. Classification based on engine speed. So according to engine speed we can further classify the internal combustion engines. So on the basis of speed, engines may be of three category: low speed engines, medium speed engines and high speed engines. Low speed engines, medium speed engines and high speed engines. So in case of low speed engines, the RPM of the engine are less than 500. So if the RPMs are less than 500, then this type of engines can be put in category of low speed engines. And if the RPMs of the engines are lying between 500 to 1000 RPM range, so that will be known as medium speed engine. And if these RPMs are greater than 1000, so if the value of RPM is greater than 1000, then it will be known as high speed engines. So what is the meaning of RPM here? RPM meaning is rotation per minute. It means the engine shaft, how many rotation the engine shaft takes in 1 minute. इंजन शाफ्ट 1 मिनट में जितने रोटेशन लेता है, क्रैंक शाफ्ट 1 मिनट में जितने भी रोटेशन कंप्लीट कर सकता है, दैट टर्म इज नोन एज आरपीएम। और अगर आरपीएम 500 से कम है किसी इंजन के तो हम उसे बोलेंगे लो स्पीड इंजन। अगर आरपीएम 500 आरपीएम से 1000 आरपीएम के बीच में है तो इसे हम बोलेंगे मीडियम स्पीड इंजन। और अगर आरपीएम 1000 आरपीएम से ज़्यादा है तो इसे हम बोलते हैं high speed engine. So another category includes based on number of cylinders. So on the basis of number of cylinders, we can again classify engines into two categories. First one is single cylinder engines and second category is multi-cylinder engines. सो अगर इंजन में एक ही सिलेंडर का यूज़ किया जा रहा है तो दैट विल बी नोन एज सिंगल सिलेंडर इंजन। एंड अगर एक से ज़्यादा इंजन सिलेंडर हम यूज़ कर रहे हैं, 2 3 4 अलग अलग हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी सिलेंडर इंजन। सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, आपको उसमें सिलेंडर देखना है कितने सिलेंडर है। अगर उस इंजन में सिंगल सिलेंडर ही यूज़ किया गया तो दैट विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ सिंगल सिलेंडर इंजन। और अगर आप वहाँ पर एक से ज़्यादा सिलेंडर्स का यूज़ कर रहे हैं, मोर देन 1 सिलेंडर इज यूज, देन इट विल बी नोन एज मल्टी सिलेंडर engines. So single cylinder and multi cylinder, there will be two categories based on the number of cylinders. So another category includes according to the arrangement of cylinder. So according to arrangement of cylinders, the category or position of the cylinder, there will be horizontal cylinder engines in which the cylinder is lying horizontally and say like this. If we put the cylinder in horizontal condition, then it will be known as horizontal engine, and if the cylinder is put in vertical position, so it will be known as vertical cylinder engine. So
Another category also include V cylinder engine. V cylinder engine connects a common shaft, and the arrangement of cylinders are in V shape. So that is also known as V cylinder engine. Piston arrangements will be like this, and there will be a common crankshaft to which this engine will be connected. As the shape of this engine is in the form of V shape, so this is known as V cylinder arrangement engine. So another arrangement is radial engine, in which the cylinders are attached radially with a common crank and produced power to and produce power for a common crank. So this category includes basically horizontal engines, vertical engines, V engines and radial engines. Another category of engines include based on ignition method. Based on ignition method, you can classify the engines as spark ignition engines and compression ignition engines. So there will be two categories: spark ignition engine, as the name implies. For spark ignition, their ignition engine, and second will be compression ignition engine. So in case of spark ignition engine, that are also known as SI engines, and these spark ignition engines are the basis of petrol engines. All the petrol engines works on स्पार्क इग्निशन. आपको उसका इग्निशन कराने के लिए एक स्पार्क प्लग की रिक्वायरमेंट होती है. स्पार्क प्लग का अरेंजमेंट जो रहता है वो आपको सिलेंडर हेड में करना पड़ता है. जो क्लियरेंस वॉल्यूम रहता है वहाँ पर फ्यूल का कंबशन होता है, और उस क्लियरेंस वॉल्यूम में फ्यूल के कंबशन के बाद एक माइन्यूट स्पार्क प्रोड्यूस होता है. तो जो बैटरी आप यूज़ करते हैं व्हीकल्स में, नियरली वो 12 वोल्ट की बैटरी आप यूज़ करते हैं, और पूरा जो इग्निशन सिस्टम रहता है वो इग्निशन सिस्टम का अरेंजमेंट हम इस तरीके से करते हैं कि ये जो 12 वोल्ट वोल्टेज है वो नियरली 20,000 वोल्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है. तो इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज जब इसमें प्रोड्यूस होता है, तो जैसे ही वोल्टेज एक स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड को पास करता है, तब वहाँ पर एक सडन स्पार्क प्रोड्यूस होता है, और उस स्पार्क के थ्रू आप वहाँ पर जो है फ्यूल है उसकी बर्निंग कराते हैं. तो ये प्रोसेस कहलाती है स्पार्क इग्निशन इंजन. जितने भी पेट्रोल इंजन है वो सभी स्पार्क इग्निशन पर ही वर्क करते हैं. सेकंड कैटेगरी इंक्लूड्स कंप्रेशन इग्निशन. सो कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स जो है उन्हें हम डीजल इंजन भी बोला जाता है, क्योंकि जितने भी डीजल इंजन हैं उसमें हमें फ्यूल को कंबस्ट कराने के लिए, फ्यूल को बर्न कराने के लिए उसे पहले कंप्रेस करना पड़ता है. तो कंप्रेस करने से फ्यूल का जो टेम्परेचर होता है, उसमें जो आप एयर सप्लाई कर रहे हैं सिलेंडर में, उसका जो टेम्परेचर है काफ़ी हाई रेज हो जाता है. नियरली 350 डिग्री टू 450 डिग्री की रेंज में आ जाता है. इतना जब हाई टेम्परेचर जब उसमें राइज होता है, तो जैसे ही आप उस पर डीजल का स्प्रे करते हैं उस हाई टेम्परेचर हीटेड एयर के ऊपर, तब वहाँ पर कंबसन स्टार्ट हो जाता है. तो जितने भी डीजल इंजन से उसमें हम कंप्रेशन इग्निशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं. एयर को कंप्रेस कराया जाता है, और उसके ऊपर जब फ्यूल हम सप्लाई करते हैं तो उसके थ्रू हम उसका कंबसन कर सकते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स बेस्ड ऑन दी कूलिंग सिस्टम. आपने इंजन में कूलिंग सिस्टम किस तरीके का लगाया है, उस कूलिंग सिस्टम पे भी आप बेस्ड आप इंजन को क्लासीफाई कर सकते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. इसमें फर्स्ट कैटेगरी आती है एयर कूल्ड इंजन्स, एंड सेकंड कैटेगरी होती है लिक्विड कूल्ड और वाटर कूल्ड इंजन्स. अब कहाँ पे इनको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं? जो लाइट व्हीकल्स होते हैं, लाइट व्हीकल्स के केस में हम एयर कूल्ड इंजन्स बनाते हैं. उसकी कूलिंग के लिए हम उस पर फिन्स, एक्स्ट्रा फिन्स अटैच करते हैं, और फिन्स का अरेंजमेंट जो होता है वो सिलेंडर के सराउंडिंग में होता है. और फिन्स का जो मेन पर्पज़ होता है, उन फिन्स का पर्पज़ होता है हीट ट्रांसफ़र एरिया को इंक्रीज करना. द बेसिक फंक्शन ऑफ फिन्स इज टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफ़र एरिया ऑफ द सिलेंडर
so that cylinder can be cooled easily and timely. तो जब इस टाइप का इंजन आप यूज़ करते हैं तो आपका इंजन जब आगे की तरफ मूव करता है, आपका व्हीकल जब आगे मूव करेगा तो एयर जो रहेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी और उस पर स्ट्राइक करेगी और फिन्स के थ्रू उसको कूल कर सकती है. सेकंड जो रहता है, जो साइज़ में इंजन्स बड़े होते हैं या जो नंबर ऑफ सिलेंडर्स जब ज़्यादा यूज़ करते हैं आप, जैसे कि 4 व्हीलर्स या ट्रक्स या बसेस की केसेस में, तब वहाँ पर आपको लिक्विड कूल्ड इंजन का यूज़ करना पड़ता है या वाटर कूल्ड इंजन्स का यूज़ करना पड़ता है. तो उस कैटेगरी में क्या होता है, आपका जो इंजन सिलेंडर होता है उसके साथ में आपको वाटर जैकेट बनाना पड़ता है. वाटर जैकेट के लिए सराउंडिंग में स्लॉट कट किए जाते हैं. उस वाटर जैकेट से आप लिक्विड को फ्लो करा सकते हैं. लिक्विड फ्लो करेगा एक साइड से, दूसरे साइड से मूव कर कर बाहर निकल जाता है और इसको हम कूल करके फिर से अगेन हम इसमें रेडिएटर में कूल करके इसे फिर से सप्लाई कर सकते हैं. तो इस तरीके से ये कंटिन्यूसली जो है हीट को लिबरेट करता रहता है. तो सेकंड क्लासिफिकेशन जो इंजन का हम करेंगे वो लिक्विड बेसिस पे रहेगा. शॉर्ट में समझे तो एयर कूल्ड इंजन्स आर यूज्ड for single cylinder engines or for small engines, and water cooled engines or liquid cooled engines are used for multi cylinder engines or for a large size of engine. So another category include based on lubrication system. So based on lubrication system, engines are basically classified into 4 categories. These are mixed lubrication system. Mixed lubrication system is also known as petro oil system. Petro oil system. So petro oil means आप जो देखते हैं जो पुराने 2 स्ट्रोक इंजन्स चलते थे, उन 2 स्ट्रोक इंजन्स के केस में आपको क्या करना पड़ता है, पेट्रोल के साथ कुछ ऑयल को फिल करना पड़ता है. पेट्रोल के साथ जब आप ऑयल को फिल करते हैं तो वो ऑयल जो है वो लुब्रिकेशन के वर्क में यूज़ होता है. तो उस टाइप का जो लुब्रिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड लुब्रिकेशन और पेट्रो ऑयल लुब्रिकेशन. सेकंड जो कैटेगरी इंक्लूड है इसमें वेट सम्प लुब्रिकेशन होता है. इसमें आप एक सम्प लेते हैं और उस जो कि क्रैंक केस का एक पार्ट रहता है उसमें आप कुछ कूलिंग ऑयल फिल करते हैं और उस लुब्रिकेशन ऑयल के थ्रू वहाँ पर आप पूरी प्रोसेस करा सकते हैं. ड्राई सम्प लुब्रिकेशन के केस में अंदर जो आपने सम्प यूज़ किया है उसके अंदर आपको किसी टाइप से लिक्विड फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये बाहर से ही पूरी प्रोसेस के थ्रू उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है. प्रेशर लुब्रिकेशन जो हम यूज़ करेंगे, प्रेशर लुब्रिकेशन ऐसी जगहों पर यूज़ किया जाता है जहाँ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स पे नॉर्मल प्रोसेसेस के थ्रू आप लुब्रिकेशंस नहीं कर सकते. तो जो आपकी फर्दर क्लासेस रहेगी, आगे की क्लासेस में आप इन सभी टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे. मैं यहाँ शॉर्ट में इसे कंक्लूड कर रहा हूँ. नेक्स्ट रहता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्यूल सप्लाई सिस्टम. आपने फ्यूल सप्लाई सिस्टम किस टाइप का यूज़ किया है. तो बेसिकली 2 टाइप से हम इसमें यूज़ कर सकते हैं. सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम जिसमें कि जो कि डीजल इंजन्स के केस में यूज़ किया जाता है, और मल्टी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम MPFI है जो कि मोस्टली जो है पेट्रोल इंजन्स के केस में यूज़ किया जाता है. इसमें एक पिंटल नोज़ल रहती है, फाइन नोज़ल रहती है जो कि फ्यूल को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करके सप्लाई करती. तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उसमें हमने देखा है कि हीट इंजन क्या होता है, हीट इंजन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, हीट इंजन की एफिशिएंसी किस तरीके से हम देख सकते हैं. उसके बाद हमने देखा हीट इंजन के क्लासिफिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं. बेसिकली हमने देखा 2 क्लासिफिकेशन थे, इंटरनल कंबशन इंजन एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन. क्योंकि हमारा ये लेक्चर इंटरनल कंबशन इंजन पे है तो हमने फिर डिस्कस किया कि इंटरनल कंबशन इंजन अगर होते हैं तो उसके किस तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट हमें देखना है इसमें कि इंजन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और उन पार्ट्स को हम किस तरीके से समझ सकते हैं. तो पार्ट्स समझने के पहले हम उसकी एक बेसिक टर्मिनोलॉजी की तरफ जाते हैं. बेसिक टर्मिनोलॉजी की अगर बात करें किसी भी इंजन को समझने के लिए तो टर्मिनोलॉजी में क्या क्या हो सकता है. तो टर्मिनोलॉजी मैं एक सिमेटिक डायग्राम आपके लिए बना रहा हूँ. आप उस सिमेटिक डायग्राम को देखिएगा और जो मैं टर्मिनोलॉजीज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ आप उसे समझिएगा. सो सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज.
So in basic terminology, first of all we have to study bore. What is bore? So the meaning of bore is the simple, in simple words, if we define bore, it is the internal diameter of a cylinder. The internal diameter or inside diameter of a cylinder is known as bore. किसी भी सिलेंडर का जो इंटरनल डायमीटर होता है, इनसाइड डायमीटर होता है, उसे हम बोर बोलते हैं. सेकंड जो टर्मिनोलॉजी हमें इसमें समझना है वो है डेड सेंटर्स. Dead centers are the extreme positions of the piston from which the piston can move, can go, and from where it can return. So the extreme positions of the piston are known as dead centers. There are two types of dead center: the top dead center and the bottom dead center. The extreme top position, from where an engine can go is from where a piston can go is known as TDC, and bottommost position up to where a piston can move is known as bottom dead center. So there are two extreme positions of piston: top dead center and the bottom dead center. The extreme top position is known as top dead center. The extreme bottom position up to where a piston can move is known as bottom dead center. Now next one classification is stroke. So next terminology we will discuss is stroke. Stroke is usually indicated by small l, and it is the distance between TDC and BDC, or we can say the distance travelled by the piston from TDC to BDC और BDC टू TDC. TDC से BDC या BDC से TDC के बीच में पिस्टन जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ. और स्ट्रोक लेंथ के लिए अगर आप देखें तो ये क्रैंक का जो रेडियस होता है इसका डबल होता है, एंड इट इज इन फॉर्मुलेटिकली इट इज रिटन एज स्ट्रोक लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ द क्रैंक. सो नेक्स्ट जो हम इसमें देखेंगे दैट विल बी स्वेप्ट वॉल्यूम. स्वेप्ट वॉल्यूम. सो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज स्वेप्ट वॉल्यूम, and it is denoted by Vs. And swept volume is the volume swept by the piston when it moves from TDC to BDC और BDC to TDC. पिस्टन जब TDC से BDC में या BDC से TDC में मूव करता है, TDC से BDC और BDC से TDC के बीच में मूव करता है, तो जितना वॉल्यूम स्वेप्ट करता है, जितना वॉल्यूम कवर करता है, उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम. और इसका कैलकुलेशन क्योंकि ये वॉल्यूम है और सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है, तो दैट कैलकुलेशन कैन बी डन बाय यूजिंग द फॉर्मूला, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम फॉर्मूला π/4 d² इंटू स्ट्रोक लेंथ. नेक्स्ट वन इज क्लियरेंस वॉल्यूम. क्लियरेंस वॉल्यूम and it is denoted by Vc. So the distance, the space available between cylinder head, this is the cylinder head where inlet valve, exhaust valve and spark plug or fuel injectors can install. So the space available between TDC and the cylinder head is known as clearance volume, and this clearance volume is intentionally provided for proper burning of the fuel. When the